Okay, class, let's start. So now today we need to talk about amortization and then we will move on to the questions. Okay? Well, amortization देखते हैं you've already done amortization, so it's not a big deal. It's something very easy. So in amortization, what do you do when we amortize a loan? So first, there's a loan. Okay, and you would either be asked to find out the installments or you would be asked to make the whole amortization table. These might be the two requirements you will get in the exam or in the questions at the end of the chapter. So these are the steps involved. This is what you need to do. First, you need to find out the payment per period, which is the installment amount. कितनी installment आप देंगे पहले सबसे पहले तो वो find out करेंगे, ठीक है? उसको find out करने का क्या तरीका होगा? क्या either the PVA would be given to you or the FEA would be given to you. या the future value given होगी या present value given होगी, and you will need to find out R. So this stands for R. Then you need to find out the interest which you need to pay. Interest is paid on the amount outstanding. जितना कर्जा रह गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, ठीक है? So you will find that. Then you will pay the installment. आप installment पे करते हैं या amount जो भी आपने पे करना है, उसमें से some amount would go to interest. First you will find out the interest, वो तो interest में चला गया. जो बाकी amount है that would go towards the principal. So with the passage of time your principal amount will keep on reducing. और जो आपका interest जो है वो लगेगा principal amount के ऊपर. आपका इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट का एक्सपेंस कम होगा और वो पैसे जो आप अपने लोन को वापस कर रहे हैं, व्हिच इज द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, वो ज्यादा होता है. एंड इन द एंड इट विल बिकम जीरो. सही है? सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस थिंग. एंड दीस आर द स्टेप्स. सो यू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, देन यू फाइंड आउट द प्रिंसिपल पेमेंट, देन यू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस एंड कीप ऑन रिपीटिंग इट till you reach the last year. और last year में आप ये करेंगे it will become zero. Zero नहीं हो रहा, 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है तो आप वहाँ पे adjust करें, ठीक है? So this is what you need to do. So let's start with the question and then we will move on to the questions from the book. Julie Miller is borrowing 10,000 at a compound annual interest rate of 12%. 10,000 का लोन है और 12% का इंटरेस्ट है. Amortize the loan if annual payments are made for 5 years. So the annual payments are for 5 years. So 5 years 10%, 12% and 10,000. ठीक है? 10,000 for 5 years at 12%. ये तीन चीजें, ठीक? So the first thing you need to find out the installment. कितने पैसे आपने देने होंगे हर साल. Okay. 10,000 is the loan which you are taking. तो ये आपको आज मिल रहा है. ये आपको आज मिल रहा है. So that means it is present value of equity. Okay, so go to the present value of equity equation. So present value of equity क्या कहते हैं? Present value of equity equals R PVIFA. अच्छा, एक चीज तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया. Whether this is an ordinary equity or equity due? Ordinary equity. Ordinary equity. How? क्योंकि आज मिल रहा है. तो ये तो कोई बात नहीं कि आज मिल रहा है. How do you decide whether it's an ordinary annuity or equity due? How do you decide that? पहले ये बताएं, how do you decide? So if it is due at the beginning, so it's If it is due at the beginning of the period. due at the beginning of the period. अगर देखें, आपको कोई और क्वेश्चन है, any question. How do you decide something is an ordinary annuity or annuity due? आप किस तरह आपको पता चलेगा? अगर हमें क्वेश्चन में अगर हमें गिवन हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने पेमेंट करनी है, हमें मिलनी है, तो ऑर्डिनरी. अच्छा, इसमें उसने क्या कहा? पेमेंट कब करनी है? अगर आज हमें लोन मिला है तो इंटरेस्ट हम साल बाद देंगे. साल बाद देंगे, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि अभी टाइम जीरो पे देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो पेमेंट. सो यू आर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट और द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और आर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. सो दैट मेक्स इट एनवीटी ऑर्डिनरी. ठीक है? इस तरह डिसाइड करना है. इस तरह के क्वेश्चंस में भी एक जगह पे हम लोग क्लास में व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट इन द अदर क्लास, तो एक क्वेश्चन था जिसमें कि मेंशन नहीं था. सो देन वी डिसाइडेड कि हां ठीक है, एक साल बाद ही पेमेंट होगी बिकॉज़ देयर इज नो मेंशन. It's not mentioned कि आप लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं टाइम जीरो. So now this is the formula which you need to use. PVIFA INN. ठीक है? Okay. So present value of annuity is 10,000. In this case, R is not given. R is not given in the question, na? Yes. Okay. PVIFA you need to find out the factor for I and N. I is 12% in 5 years. So for 12% in 5 years you need to find it out. And for that you will have to go to the table. So let's go to the table.
and find out the value. This is the book and 512. 512. 712. 712 is what? Page number? Yes. Okay, so PVIFA, which is table number 4. So this is table number 4 for you. PVIFA, rotate. Okay, so it says 12% for 5 years. This is 12%. 3.605. And for 5 years, it's 3.605. So 3.605. 2774. Okay. इसको उठा के उधर ले जाएंगे. Divided. So R would be equal to 10,000 divided by 3.605, and your installment is 2774. 774. ये राउंड ऑफ फिगर. ठीक है? ये राउंड ऑफ फिगर. ठीक है, आखिर में जो मसला आएगा 1-2 रुपए का उसको हम एडजस्ट कर देंगे. ठीक है? So 2774. So this is your sorry. Okay. So this is your installment amount. आगे आपके पास now you need to find out, now you need to make the amortization. ठीक है? There are 5 years. So 1, 2, 3, 4, 5. In the exam I might not ask you to make the table. मैं उसमें से जो चीजें पूछनी है वो आपसे पूछ लूँगा. But in the rough work you will have to make the table, otherwise you will not be able to answer those questions. ठीक है? आप उसको आंसर नहीं कर सकेंगे जब तक टेबल नहीं बनेगा, तो आपको ये टेबल कहीं ना कहीं पे रफ वर्क में बनाना पड़ेगा. Which means फॉर्मली आपको बड़ा खूबसूरत नाइस एंड क्लीन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. I just need the calculations. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. You start off with 10,000. You started off with 10,000, and you are giving as an installment 2,774 every year. So this remains the same. That's why it is an annuity, because this is same. ये भी हो गया. अच्छा. Now in the first year, at the end of the first year, it's 10,000. So the interest will be on this 10,000 rupees. So the interest 12%. Yes. 12%, huh? Yes. It was 12%. Okay. So the 12% interest on 10,000 would be equal to 1,200. So now this 10,000, this 2,774 which you are paying, इसमें से straight away 1,200 चला जाएगा interest में. Yes. तो बाकी कितना बचेगा? 1574. 1574. This 1574 would go towards the payment of your principal amount. ये principal amount की payment में चलेगा. अब नया principal for the next year would be less than 10,000. Yes. It would be 10,000 minus 1574. So the new principal would be 8426. 426. ठीक. अब अगला साल शुरू हुआ. अब अगले साल में फिर इंटरेस्ट लगेगा, but not on the 10,000 but on this 8,426. So it would be 1011.12. 1011.12. ठीक है? मैंने आपसे कहा वर्क के साथ साथ ये काम होता जाएगा. Okay? But the installment remains the same, 2,774. So the repayment of principal would be 1762.88. 1762.88. ये वर्क के साथ ज्यादा होगा, ये वर्क के साथ कम होगा. सही है? Okay. So now the principal amount for the next year would be reduced by this amount. यानी 8426 minus 1762.88. It would become 6663.1. 663.10. Take One, up 1, 2, 2. Okay, so this is 1, 2. Now interest would be charged on this amount. इसके ऊपर interest आप लगा दें 12% का. 799. ये राउंडेड फिगर बता रहा था. 799.57 actually. 799.57. 2,774 minus 799.57. 1974.4. 1974.40. आपको जब तक 2 decimal places तक पूरी फिगर बताएगा ना. 4, 2. Okay. So now this will be reduced from this principal amount. So your new principal would be 4,688.7. 4,688.70. 70. Yes. Okay, 70. Now interest would be charged on this amount. So 12% of 4,688.7. 562.64. 562.64. Yes, sir. So that means your repayment of principal would be 2,774 minus 562.64. 2,211.36. 2,211.36. Now your new principal would be reduced by this amount, so it would be 4,688.70 minus 2,211.36. 477.34. 477.34.
3. Interest would be charged on this amount, which would be equal to, interest would be charged on this amount 297.28. 4 297.28. 0.28. Now 2734 minus 297.28 should be equal to this one. 2476.71. Around 476.71. इन दोनों को इक्वल आना चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल में मैंने आपसे कहा ना 1-2 रुपए का फर्क आएगा, ठीक? तो बस इसको राउंड करके, इन दोनों फिगर्स को राउंड करके इसके बराबर मिल जाएगा, ठीक है? कर दिया गया? डन? इजी, आप पहले ये कर चुके हैं, so I don't think there would be any problems. सही है? जाए आगे? Okay, this is what it looks like. इन्होंने पहले से राउंड किया हुआ है, इसका सेम का डेसिमल में कोई वो नहीं आता। Okay. Now why is this amortization useful? ठीक है, ये amortization क्यों फायदा है, इसमें क्या अच्छी चीज है आपके लिए? देखिए, first of all, it will tell you about the interest expense. It will tell you about this expense. Every year, you need to make an entry for interest expense. Interest expense record करना है ना आपने? वो कहाँ से पता चलेगा? इस जगह से पता चलेगा, ठीक है? Otherwise you are paying 2774. आप तो ये अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है जो आपने एंट्री में शो करना है एज इंटरेस्ट एक्सपेंस और एज फाइनेंशियल चार्जेस, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा एवरी ईयर. Remember, this interest expense would then be used for taxable income. Taxable income में से माइनस होगा, जिससे आपका टैक्स का अमाउंट, टैक्सेबल इनकम कम होती है, तो ये अमाउंट काम का है, ठीक है? Got the idea? Okay. 2 दिन पहले when I was filing my taxes, I had estimated it would take me 3 hours to file 3 returns. It would take me 3 hours to file 3 returns. I had to file 3 returns. It took me 1.5 hours for the first return. मैं 1.5 hour हो गया तो मैंने कहा यार ये तो टाइम खराब है. 12 बजे was the last time, so I had to submit till 12 o'clock at night. I started at 9 o'clock. ठीक, मैंने हिसाब लगाया कि ठीक है 3 घंटे, 9 बजे बैठूंगा काम के लिए. I went back home around 8, had my prayers, dinner, और उसके बाद 9 बजे काम के लिए बैठा. 9 से थोड़ा ऊपर काम के लिए बैठा. 1.5 hour. नेक्स्ट रिटर्न मैंने कहा 1 घंटे में पूरा करता हूँ, वो 1 घंटे से थोड़ा और ऊपर चला, ठीक है? फॉर लास्ट रिटर्न आई हैड ओनली 10 मिनट्स, ठीक है? आई फाइल्ड दैट रिटर्न इन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स. 12:05 में मैंने काम खत्म किया, ठीक है? मैंने कहा बस ये थर्ड रिटर्न फाइल नहीं, बट देन दे एक्सटेंडेड द टाइम एंड टाइम एक्सटेंड हो गया, तो वो चला गया 30 अक्टूबर तक मेरे ख्याल में टाइम चला गया, सो आई फाइल्ड रिटर्न. बट दिस थिंग, ठीक, व्हेन यू actually do it, then you will realize कि हाँ ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं. Although you are students, but this is what I told my students who are already in 7th semester. They have already done taxation. तो उनको मैं कह रहा था, look for some clients and start filing taxes. So this is high time when you would start learning it. ठीक है? आप learn करेंगे ऐसा ऐसा और आप पैसे भी साथ साथ कमाने शुरू करेंगे. अभी तो आप लोगों का भी टाइम थोड़ा सा जल्दी है, अभी आप लोग इस टाइम तो नहीं कर सकेंगे, बट इंशाल्लाह अराउंड 6th or 7th semester you would be able to file returns, ठीक है? तो साथ साथ you can do your tax consultancy as well, ठीक है? मतलब जो बेसिक टैक्सेस हैं वो तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे. हाँ, जो बड़े बिजनेसेस होंगे उनके लिए आपको थोड़ा सा मसला होगा, बट द गुड थिंग इज यू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड यू वुड हैव नॉलेज ऑफ टैक्सेशन बाय दैट टाइम. तो दोनों चीजें जब होंगी तो आप आराम से उनकी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, कैलकुलेशंस आराम से कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा. सो दिस इज वन थिंग व्हिच इज देयर. मुझे ये टैक्सेबल इनकम से याद आया, इंटरेस्ट एक्सपेंस से याद आया कि वहाँ पे बार-बार इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था, तो आप उसमें रख के उस टैक्सेबल इनकम को कम करके और फिर टैक्स की कैलकुलेशन प्लस टैक्स रिफंड. टैक्स रिफंड हमने बात की थी ना, वो कैरी बैक वाली और टैक्स रिफंड वाली. सो टैक्स रिफंड बिकॉज माय टैक्सेस वेंट अप टिल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने कहा ये पैसे कहाँ से पे करूँगा. एंड ऑल ऑफ सडन आई रिमेंबर्ड मेरे तो पिछले 2-3 सालों से टैक्स रिफंड्स आ रहे हैं. पुरानी रिटर्न्स को लिए टैक्स रिफंड उठाए, उसमें डाले एंड मेड इट 0, ठीक है? मैंने कहा ठीक है वो टैक्स रिफंड यहाँ पे क्लेम कर लेता हूँ, टैक्स रिफंड वहाँ पे क्लेम कर दिए. सो दिस ईयर आई हैड टू पे नो टैक्सेस, बट नेक्स्ट ईयर इट सीम्स लाइक आई विल हैव टू पे अ वेरी हेवी टैक्स. इस दफा भी ठीक ठाक आ रहा था, 1 लाख से ऊपर आ रहा था,
but thank God I had tax refunds from the previous 2-3 years. तो वो 2-3 सालों का सारा tax refund मैंने यहाँ पे डाला. Okay, so that was interest expense. Now the next thing is you can calculate how much debt you still have to pay. कितना पैसे आपने अभी भी पे करने हैं. देखिए जब यहाँ पे मैं ये पैसे दे देता हूँ उसको, ठीक है, ये installment. So this amount goes to interest. This amount goes towards your principal. तो अगला साल अब मेरी liability कितनी है? मेरी liability is not 10,000. My liability is now is 8,416. So this tells you about your outstanding debt. आपको बताता है कि कितने पैसे आपने और देने हैं. ये क्यों अच्छा है आपके लिए? You can plan ahead. इतने पैसे आपने और वापस करने हैं, कर्जा वापस करना है, तो आपको पता होता है कि यार मैंने कितनी पैसे और देने हैं. उसके मुताबिक you can do your calculations, estimates लगा सकते हैं कि अच्छा यार इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे, ठीक है. बजटिंग अभी तक तो नहीं की, ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में you will do budgeting, तो फिर वहाँ पे ये चीज would be used. ठीक, got the idea? Clear? सही है? जाए आगे. Okay, so that's the end of the chapter, and now let's move on to the questions. And if you have any questions, please let me know. J. So chapter 3. Chapter 3 है? Yes. Okay. Page number? Anybody remembers the page number? 95. Which one is this? 95. This is 5. 95. Okay. So let's go to 95. 95. Okay, 95. Okay, class. Any problem? ऊपर. 18 कह रहे थे आपको? Yes. Okay, so let's talk about problem number 18 first. और इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए. 18. Can I rub this off? Yes. Okay, class. So while doing the questions, one thing is important. You should be able to make a timeline, and you should be able to decide कि which question it relates to, which part of the NVD or the mixed flow it relates to. अगर आपको ये बताया तो it will be easier for you. ठीक है? तो एक तो timeline बनाना सीख लें और एक ये बनाना सीख लें कि आपको क्या इसमें find out करना है, इसमें क्या चीज़ चाहिए. 18. When you were born, your dear old aunt Minnie promised to deposit 1,000 in savings account for you on each and every one of your birthdays. जब आप पैदा हुए तो आपकी आंटी ने कहा कि मैं हर इसकी सालगिरह पर 1,000 रुपए इसके नाम पर बैंक में रख दूं. ठीक है? तो आप पैदा हुए यहाँ पर, ठीक, और आपकी पहली बर्थडे आएगी 1 साल बाद यहाँ पर 1,000 रुपए बैंक में जाए और हर बर्थडे पे 1,000 रुपए बैंक में जाए. सो व्हाट डज दैट टेल यू? ये क्या चीज है? एनवीडी हो गई और ऑर्डिनरी हो गई. स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड ऑफ द ईयर द पेमेंट इज बीइंग डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. ठीक, एंड आर इक्वल्स 1,000. ठीक है, ओके. सो आर इक्वल्स 1,000. हर साल 1,000 रुपए वो बैंक में आपके लिए रखेंगे. ओके, फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ योर बर्थडेज बिगिनिंग विद योर फर्स्ट, स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है. The savings account bears a 5% compound annual rate of interest. Okay. So rate of interest is 5%. You have just turned 25 and want all the cash. आप 25 सालों के हो गए, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ये जा रहा है 25 तक. So this moves on till 25. Okay. However, it turns out that dear old forgetful Aunt Minnie made no deposits on your 5th, 7th and 11th birthdays. लेकिन एक मसला है. यहाँ पे 5वीं बर्थडे पे, 7th पे, 11th पे कोई भी पैसे जमा नहीं हुए. ठीक है, अब ये मसला है. 5वीं पे, 7वीं पे और 11वीं पे. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5th. इस 5th पे कोई भी पैसे नहीं हुए. ठीक, 6th पे फिर पैसे हुए, 7th पे फिर नहीं हुए. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 फिर नहीं हुए. और फिर 11 से आगे जाके 25 तक सारे पैसे हुए. ठीक है, और 25 बर्थडे पे आप कहते हैं कि ये सारे पैसे मैं विड्रॉ करूं. ठीक, इसका मतलब 25 बर्थडे तक, 11 से 25 तक एक बिल्कुल क्लियर गो है. 0 से 5 तक है, फिर 5 में 6 में है, फिर 7 नहीं है और फिर ये एक जगह. ओके, हाउ मच इज इन द अकाउंट नाउ ऑन योर 25th बर्थडे? इस दिन कितने पैसे हैं? इस दिन यहाँ पर कितने पैसे हैं? ओके, सो व्हाट इज दिस अमाउंट?
It is somewhere in the future. What does this look like? एनवीटी की तरह लग रहा है, लेकिन मसला ये है कि एनवीटी है लेकिन दरमियान में गैप्स आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी व्हिच यू नीड टू फाइंड आउट। मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी फाइंड आउट किया। 1000 रुपए मेरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है व्हिच इज आर 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, n equals 25, बट द प्रॉब्लम इज n equals 25 तब काम करेगा जब हर साल पेमेंट होगी। हर साल पेमेंट होगी तब काम करेगा। अब क्या करें? 3 साल में पेमेंट नहीं, अब क्या पहले 25 साल का फाइन कर दिया। 25 का फाइंड आउट करने देखिए, इसके दो तरीके हैं। या तो यू फाइंड आउट फॉर द होल 25 years and then subtract the missing period, और what we did in the previous class कि वहां पर हम इन सब को अलग-अलग बना दें और इसका फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब ये अलग-अलग किस तरह बनेगा इसको देखते हैं, और 25 वाला किस तरह बनेगा वो भी देखते हैं। ओके, सो नाउ 0 1 2 3 4 5 यहां तक तो पेमेंट्स आ रही है ना, फिफ्थ पे पेमेंट नहीं आई, तो ये क्या बना? 5 years की एन्युटी है। 5 years की एन्युटी, 4 year की एन्युटी है। यही सारा मसला है। ये 5 की है या 4 की? 4 की है। सॉरी, फिफ्थ पे तो मिसिंग है ना सर, 5th पे मिसिंग है तो 4 Fifth पे तो missing 4 years की है। 5 years की एन्युटी नहीं है, फिफ्थ में कोई पेमेंट नहीं हुई। याद रखें, दिस इज ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी अगर फिफ्थ में पेमेंट होती सो देन इट वुड हैव बीन 5 years। 4 पे पेमेंट है, 0 पे पेमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यू टेक इट लाइक दिस। इसको मैं दोबारा से यहां बना रहा हूं, ठीक है? 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4, यहां पे पेमेंट नहीं है, यहां पे पेमेंट आ रही है, यहां पे 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 फिर नहीं है। ठीक है, तो ये एन्युटी इतनी है। ठीक, so I need to find out the future value of annuity. So future value of annuity equals R, which is 1000 into FEIFA. I over here is 5% and N over here is 4. ये आप कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है? लेकिन ये तो इस जगह तक आ जाएगा, इस जगह। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। मुझे चाहिए इस जगह तक, सिंपल कंपाउंड। तो फिर इसको उठाकर आखिर तक दोबारा भी फाइंड आउट करना है। अब जब इसको आखिर तक दोबारा फाइंड आउट करूंगा तो एक तो ये इसका आंसर आ जाएगा ना। इसके साथ इस अमाउंट को फिर मुझे कंपाउंड करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या है? कैलकुलेट किया किसी ने? इस तरीके से नहीं किया। अच्छा चलें, छोड़ दे, जो भी आंसर है, whatever is your answer, you need to multiply that for simple compounding। जो आम कंपाउंडिंग होती है सिंगल अमाउंट की। सिंगल अमाउंट की कंपाउंडिंग आप लोग किस तरह करते हैं? फ्यूचर वैल्यू पीवी इनटू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई 1 प्लस आई रेज़ टू पावर ऑफ n। यहां का जो आंसर आ गया यहां से, यस सर, लेट्स से यहां से आंसर आ गया क्या? x लिख लेते हैं इसको, लेट्स डिनोट इट बाय x। सो x अब ये इस जगह पर समझे कि 0 बन गया है, और ये यहां से यहां तक मुझे चाहिए। So now this becomes 0, 20 साल, and this is actually year number 4। अब देखें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये कितने साल के? Last year ये ईयर नंबर 4 है और ये ईयर नंबर 25 है। 21 इयर्स। 4 से 5 एक साल ना, ठीक है? 4 से 5 1, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21। लेकिन ये ऑर्डिनरी है तो हम 20 लेंगे सर। सिंपल कंपाउंडिंग है। क्यों? ये तो एन्युटी है ही नहीं। मतलब एन्युटी तब होती है जब पावर हो, ठीक है? सो नाउ ओवर हियर दिस वुड बिकम 1 plus 5% is for 21, ठीक? और अगर ये कहीं पे 99 years तक होता तो फिर आप एक करके गिनते, तो इस तरह ना गिनते ना, तो फिर आप किस तरह गिनते? फिर आप किस तरह गिनते क्लास? क्या सर? 25 माइनस 4 कर 25 minus 4, ठीक है? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ना कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 इस तरह करके गिनवाया ताकि आपको गलती ना हो। नहीं तो अदरवाइज व्हाट विल यू डू? 25 minus 4, so 21, ठीक है? 21। गॉट द आइडिया? यस गॉट द आइडिया? ये हो गया इसका,
यहाँ पे कोई पेमेंट मिली आपको? No. नहीं। ये जो पेमेंट है 6 ईयर वाली, इसके साथ क्या करते हैं? ये अलग से इसकी एनुटी बनती है? No. नहीं, इसकी कोई एनुटी नहीं है क्योंकि 7 को कोई पेमेंट नहीं आ रही। तो इसको सिंपल कंपाउंड करते हैं एक तरीके से। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट ओवर हियर FV इक्वल्स PV। PV यहाँ पर अब कितनी होगी? ये देखें, अब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 6 से लेकर ईयर नंबर 6 से ईयर 25 और दरमियान की पेमेंट्स को मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो तो अलग एनुटी है। यहाँ पर आपको मिल रहा है 1000 रुपए, ठीक है? सो ओवर हियर माय प्रेजेंट वैल्यू इज 1000 और 1 प्लस 5%। अब ये रेशियो पावर कितना करूं? 25 minus 6, जिस तरह यहाँ पे किया था 25 minus 4, so 25 minus 6 this would give you raised to power 19, ठीक है? एक मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, एक मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, 1 2 2 पे। अब आगे जाएं, अब इसकी बात करते हैं 7 to 11 वाली। 7 to 11 में I have payments on 8 9 10 11 में कोई पेमेंट नहीं। अब ये कितनी एनुटी बनती है? 3 साल की। देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर नंबर 7 यहां पर 7 में कोई पेमेंट नहीं है ना, ठीक है? क्रॉस है, 7 पेमेंट नहीं है, देयर इज पेमेंट ऑन 8 9 10 11 पेमेंट नहीं है। सो 8 9 10 11 पेमेंट नहीं है, यहां पे पेमेंट है, यहां पर। सो व्हाट डज दैट मेक? 3 years। Yes sir. 11 में तो पेमेंट नहीं हुई सर। 3 साल। 7 को नहीं हुई 3 years. 3 years 3 years 3 years 3 years कंफर्म? Yes sir. कोई 4 years तो नहीं कह रहा? No sir. ऑर्डिनरी एनुटी का रूल क्या होता है कि पहले साल नहीं पेमेंट नहीं होती, लास्ट साल पेमेंट Okay. होती है। सो दैट मींस वी नीड टू स्टॉप here at 10, so that makes 1 2 3। ओके, इसकी भी आप लोग बना लें। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इक्वल्स 1000 FVIFA 5% एंड 3 years। लेकिन फिर वही मसला कि ये तो यहाँ पर 10 तक आ जाएगा, फिर इसको 10 से दोबारा 25 तक लेके जाना है, 15 इयर्स फिर कंपाउंडिंग फिर सिंपल 15 years तक कंपाउंडिंग। लेट्स से इसका आंसर आपके पास आ जाता है y, ठीक है? लेट्स से अब इसको कंपाउंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स y into 1 plus 5% raised to power of 20 15 10 minus 25 25 minus 10 15, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। अब 11 से 25 तक 11 को कोई पेमेंट नहीं है, सो 11 एक्चुअली बिकम्स अ ईयर 0 और यहां से 25 तक हर साल पेमेंट है। सो नाउ दिस इज इजी, दिस इज इजी। लेकिन यहां पे आप नंबर ऑफ इयर्स आप कहेंगे कितना है? सो नंबर ऑफ इयर्स 25 minus 11 14 years। अब ये एनुटी आ गई 14 years। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इक्वल्स 1000 into FVIFA 5% 14 और इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? सब ऐड कर इस वाले को, Yes sir. इस वाले को, Sir x को add नहीं करेंगे sir. इस वाले को, ये वाला और इस वाले को, इस सबको ऐड कर, ठीक है? तो आपके पास 1 2 3 4 1 ये वाला आ गया, ये यहां तक, फिर इसको आ गया 1 2 ये 6 वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला, Sir, 4। जो पहले 4 साल में हमने 5% जो x हमारे पास वैल्यू आ गया सर, हाँ। वो हम क्यों ऐड नहीं कर रहे सर इसमें? वो इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि वो जो ये जो अमाउंट आई ये आई 4 इयर्स, ये यहां तक है, 4 years तक है। ये तो मुझे यहां तक लेके जाना है, तो फिर इसको फर्दर ये करूंगा, इसको लेके जाऊंगा, इसको ऐड, उस वाले को नहीं करूंगा। जी क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन इन दिस वन? सो दिस वन इज क्लियर। अब एमएल की तरीके से करते हैं, ठीक है? व्हिच माइट बी अ बिट इजियर, शायद थोड़ा सा ज्यादा आसान है, ठीक? हम कहते हैं यार सबको मारो गोली, फिलहाल अज्यूम करते हैं कि बस ये सारी पेमेंट्स हैं, फिर जो जो पेमेंट नहीं है उसको बीच में से निकाल दो, ठीक है? सारी पेमेंट्स अगर होंगी, सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी सिंपल 1000 into FVIFA with 5% and 25 years, ये निकला है। लेकिन ये तो पूरी एनुटी का निकला है कि अगर ये 25 years की सारी पेमेंट्स होती हैं, अब सारी पेमेंट नहीं है तो जो पेमेंट नहीं है उसको बीच में से माइनस करना है,
अब देखें कौन कौन सी पेमेंट्स नहीं है। 5th 7th and 11th 5th 7th 11th। अच्छा, अब 5th की पेमेंट को बीच में से कैसे निकालूं? 1000 रुपए निकालूं? 20 years 1000 रुपए को निकालूं, क्या करूं? -20 just करेंगे तो 5 5th की पेमेंट 5th ईयर में पेमेंट नहीं आई ना, यस ठीक है? तो ये 5th ईयर की पेमेंट कंपाउंड होके नहीं गई हो, यस ठीक? तो 5th ईयर की पेमेंट यहाँ पर है 1000 रुपए की। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बनी होगी? 20 साल में। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बनी होगी? इसका मतलब ये है कि मुझे इसका फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, 1 plus I 1 प्लस 5% है, Power और n 20 25 माइनस 5 5 20 20। एक तो ये माइनस होगी, इसको माइनस करना है शाम, इस वाली पेमेंट को माइनस करना है। सब पेमेंट लिख दीजिए ना, बता दीजिए सब। कैलकुलेट की Yes, हुई? yes. ओके, पहली कैलकुलेशन बताएं फीस। 47 7 27 ये इसका फोन नंबर है 47,727 47,727 727 एग्जैक्ट 0.09 0.09। ये पूरी 25 इयर्स की एक इन्वेंटरी है। इसमें से माइनस करना है आपने 1000 जो कि 5th ईयर को नहीं मिला। तो 5th ईयर को नहीं मिला, इसकी वैल्यू आ रही है 653.30। एक तो ये माइनस करना है, दूसरा देखिए, दूसरी पेमेंट थी 7। तो सेम 1000 1 प्लस 5% रेज टू पावर ऑफ 25 माइनस 7 18। ये कितना आएगा? 2406.62 406.62। Yes. एक ये हो गया। नेक्स्ट 7, उसके बाद 11। सो 1000 into 1 plus 5% raised to power of 11 25 minus 11 14 14 पी आएगा 1979 जी 0.93 93। इन तीनों को ऐड कर दें 7,039.85 85। इसमें से इसको माइनस कर दें 40,000 40,687.24 सही। This जी। one is दिस वन इज इजी। Yes. जो आपको आसान लगता है वो आसान लगता है, ये आसान लगता है। हमने दूसरी क्लास में उस तरीके से किया, ये बताया आपके लिए आसान। आपके बच्चे आएंगे सर इस क्लास में। बस यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि सर इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, ठीक है? डन जी। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? क्वेश्चन 2 पार्ट सी। इसमें क्या मसला है यार? 2 तो आसान। लेट्स सी 2 पार्ट सी। ओके 2 ओके 2 ठीक है जी। 2 पे आ गए, पार्ट सी। सो लेट्स गो टू पार्ट सी। The following are exercises in present values or C. 100 is received at the end of 1 year, 500 at the end of 2 years, and 1000 at the end of 3 years. What is the aggregate present value of these receipts is discounted? पहले 4% पैसा में क्या करेंगे ऐड करेंगे Okay, 100 is received at the end of 1 year. End of 1 year. यहाँ पर 100. Okay. 500 at the end of 2 years. 500 यहाँ पे मिले, and 1000 at the end of 3 years. ये यहाँ पे। What is the aggregate present value of these receipts? इसकी present value find out करें। यहाँ पे करें। इसका मतलब इसको डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट। पहले 4% पे, फिर 25%। So at the end of 2 years or at the end of second year? Sir, 500 total value. 500 at the end of 2 years. एक 2 years let's have a look at it again. Second. 2 साल 100 is received at the end of 1 year. First year. At the end of 1 year. 500 at the end of 2 years. Second year. 2 साल बाद कौन मिलेगी 500 at the end of 2 years. 2 or 3 पे 500. And 1000 at the end of 3 years. 3 years. ऐसे It's ही not second year. It's 2 years. At the end of 2 years. सर मुंह दिशा के 100 is received at
at the end of 1 year, 500 at the end of. So what you're trying to say is 1 year and 2 years. इस तरह कहना चाह रहे हैं? सर एक ही बात नहीं है सर, एक ही बात है सर, सेकंड ईयर या 2 ईयर एक ही बात। मैं तो उसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड समझ रहा था। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हम भी समझे सर आपने भी यही समझा? नहीं समझे, एक कर दिया सर 2 और 3 में 500 होगा, इसके बाद 3 साल में 10,000। Double annuity is simple. नहीं सर 2 साल बाद की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 500 है, तो 2 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू हम मांग रहे हो क्या है, 500 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अगर 2 साल बाद 500 मिल रहे हैं तो 2 साल पहले क्या वैल्यू है उसकी, ये वो मांग। तो 2 साल पहले नहीं, इसी टाइमलाइन पे हो सकता है। अगर इसी टाइमलाइन पे हो सकती है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि एंड ऑफ 2 इयर्स का मतलब ये हो गया कि पहले साल ये हो गया, दूसरे साल के मतलब यहाँ पे आ गया 500, और फिर ये 3 इयर्स के लिए आ गया तो 4, 5, 6। तारीख कह रहा है ये चीज ये नहीं है सर, क्योंकि सर ये अलग अलग हम बनाए नहीं है टाइमलाइन। Statement ऐसे है at the end of 2 years. Sir, there was second at the end of 2 2 years. years तो one or two 2 to 1 के बाद शुरू होगा। Then, like if it was at the end of second year, हाँ, then it was like now it should have been, अगर जिस तरह मैंने अभी करके आपको बताया है, अगर उस तरह होता तो ये it should have been written at the end of first year, at the end of second year, and at the end of third year. लेकिन अब इसने लिखा at the end of सर ये 1 सारे year। क्वेश्चन फिर इस तरह है ना, इससे नीचे वाला डी पार्ट देख के वो भी ऐसे है, फिर वो वो भी है सर। इसके question लिखा है कि sir, in manual solution it was sort of like that. ये वो बात से Second करती हुई year, है। yes. Okay, 100 at the end of 3 years is worth how much today? 100 at the end of 3 3 years. years. जब तारीख को उसी में मसला है तो फिर तो बी और फिर तो A भी इस तरीके से आप करेंगे 1, 2, 3। सर हमने ऐसे किया है उन्होंने manual solution में आप जैसे। बस ना, तो मतलब ये है कि हम सर ये राइटर को सर मैं जरा एक्सप्लेन करूं कि किस तरह ये लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन। करें, एक्सप्लेन करें। ये सर इस तरह ये लोग ले रहे हैं ना, जैसे कि 0 से 1 तक के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट हो गया सर, फिर 0 से 2 तक जो है वो सेकंड ईयर हो गया, फिर 0 से 3 तक है थर्ड ईयर, इस तरह बुक वाले में दिया। वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ईयर्स, इसलिए उसके साथ लगाया कि 1 और 2 के साथ तो है There 2 से 3 तक भी 1 year. वर्क होता है। अगर 3 अलग अलग टाइमलाइन बनाए तो ये आता है। हाँ सर, अगर तीन अलग अलग टाइमलाइन बनाए 100 की अलग बनाने 500 की अलग। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल करता है। अब तक इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो सामने आई है, that would mean simply what we've done. लेकिन let's see कि what terminology the book is using, so we would be more clear about this, कि what actually it means. Okay? So let's find out. Let's find out class. Let's find out. Let's move to this one. Where is it? यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कहीं पे इसने कोई क्वेश्चन किया हुआ है? अच्छा, देखें क्लास, let's have a look at this. Class, let's have a look at this. At the starting of the present value concept should enable us to answer a question that we posed at the very beginning of this chapter. Which would you prefer, 1,000 today or 2,010 years from today? Assume that both sums are completely certain and your opportunity cost of funds is 8% per annum. That is, you could borrow or lend at 8%. The present worth of 1,000 received today is easy, it is worth 1,000. However, यहाँ से पढ़ें. What is 2,000 received at the end of 10 years? 2,000 received at the end of 10 years. वहाँ पे क्या लिखा था? 1,000 received at the end of 3 years. तो उसका मतलब था कि 3 साल बाद क्या है? 2,000 received at the end of 10 years worth to you today. We might begin by asking what amount would grow to be 2,000 at the end of 10 years at 8%. तो वो जब at the end of 10 years कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब है at the end of 10th year. ये नहीं कह रहा कि for every year for 10 years. तो मतलब ये जो आपने कहा ना, ये गलत है, ठीक? जो हमने पहले किया था ना कि 100 फर्स्ट ईयर, 500 सेकंड ईयर, 1,000 थर्ड ईयर, वो सही, ठीक है? इस स्टेटमेंट से तो मुझे यही समझ आ रही है, और जो मुझे पहली बार समझ आई जब मैंने पढ़ा सर वो ईयर्स इसलिए साथ लगा रहे क्योंकि वो 3 जब कहते हैं 3 तो मोर देन 1 है, इसलिए एस साथ लगाया कि 1 0 2 3।
अच्छा आप तारीख आप बताएं, आपने जिस जगह से लिखा उसमें क्या लिखा था? Well, how would be if 100, 500 and 1000? जब वो आता तो बच्चों के लिए I mean, it's a question. एक दफा फिर आपको बता देता हूँ, टू ये टू था, ये वाला था नहीं, तो ये this is the one, okay, 100 सारे वर्ड्स देखें, सारे वर्ड्स देखें एक दफा फिर इसको 100 at the end of 3 years, at the end of 3 years, so वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में 8 ईयर लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 3 और ये डिफरेंस आ रहा न्यूमेरिकल में यहाँ वर्ड्स में 3 लिखा है, ओवर जो है कोई मेरा नहीं ख्याल इस इट मेक्स अ डिफरेंस, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार पढ़ा तो मैंने इसको इसी तरह सॉल्व कर लिया, ठीक है? Sir, the terminology is confusing. ये राइटर को नहीं, do not confuse yourself, ठीक है? Do not confuse yourself. इसको इसी तरह देखें, इसको इसी तरह देखें. 100 at the end of 3 years is what how much to pay at the end of 3 years. So it does not mean at the end of 3 years 1 2 3 हर बार 3. ये इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब है सिर्फ इस जगह तीसरे साल सही ठीक है? इसको इसी तरह समझिए, इसको इसी तरह लिखें. अगर एग्जाम में मेरे मैं ये कहना चाहता हूं कि हर साल for 3 years, so I would clear cut say कि you are receiving 1000 या 100 for 3 years, ठीक है? At the end of 3 years. सर ये जो कह 3 साल के आखिर में ये जो और होगा for 3 years. वो इस तरह लिखा होगा कि हर साल आपको 3 साल तक मिल रहा है. So that would be the terminology would be for 3 years. ठीक? So don't confuse yourselves. ये जिसमें कंफ्यूजन है सर उसके रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि फॉर ईच ईयर फॉर इतने ईयर या 3 लिखा होता है फॉर ईच बार ईयर चेक कर लेते हैं. आ जाए एनवीडी का कोई क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें उसने साफ लेकर लिखा हो परचेज एनवीडी दैट विल प्रोवाइड हिम विद स्टडी इनकम ओवर द नेक्स्ट 12 years. यस, अच्छा नहीं, कोई सिंपल वाला क्वेश्चन, सिंपल वाला एनवीडी का क्वेश्चन कहां पे था? 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन 14 नहीं है सर, नहीं है सर बहुत ये तो amortization है. ये amortization का है. कोई सिंपल एनवीडी का क्वेश्चन बताया ताकि उसकी टर्मिनोलॉजी भी चेक करें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो. है. ये नीचे 5 नंबर नीचे 5 नंबर. Okay, 5 number it says same as from 4 above except that it was a certain amount at the beginning of each of the next 10 years. Each of At the beginning of each of the next 10 years. yes sir, yeah. तो वो आपको कहेगा कि for every year for 10 years. ठीक है? यानी हर साल 10 साल तक. ठीक है? तो वो इस तरह कहेगा. So don't get confused. जब एनवीडी होगी तो वो साफ-साफ क्लियर कर देगा for each and every. ठीक है? या each का वर्ड या every का वर्ड इस्तेमाल करना होगा. Okay class, any other problem? 6 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है सर. 6 number question भी ऐसा है. Verdal Equinox wishes to borrow 10,000 for 3 years. 10,000 लेना चाहता है 3 साल के लिए. 4 3 years ठीक है? For 3 years. मतलब each year 1000 now उधर भी लिखा है For 3 years. हाँ, for 3 Okay. years. अच्छा जी. और कोई पूछना चाह रहे हैं क्लास? Question 19 sir. Question 19 Sir, Question 19. जीता. 19. Okay. So let's do 19. Let's do 19. 19 का तो यार सब कुछ उसने बना के दिया हुआ है. इसमें तो कोई मुश्किल होना ही नहीं चाहिए. Let's do it quickly. Let's do it quickly. Assume that you will be opening a savings account today by depositing 100,000. Saving account today by depositing 100,000. आज के दिन आप यानी यहाँ पर year 0 पे आप दे रहे हैं कितना उसे? 100,000. ठीक? 1 लाख रुपए आप इसको दे रहे हैं. The savings account pays 5%. यार इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. थोड़ा सा मतलब यहाँ पे. ठीक है? So that it doesn't get mixed up. 1,000, 10, 100,000. 100,000 यहाँ पे हो गया? Yes sir. Okay. 100,000 today, the savings account pays 5% compound annual returns. 5%. So your I equals 5%. आगे चलें. Interest rate is assumed to remain in effect for all future. So it's the same throughout. Okay, let's move on. 4 years from today, you will withdraw $R. 4 years from today, 4 साल बाद. 1, 2, 3, 4. यहाँ पर मैं पहली withdraw कर रहा हूँ. Okay, पहली withdraw होगी. To make additional, अच्छा, 4 years from today, you will withdraw $R. You will continue to make additional annual withdrawals of $R for a while longer. और वो कह रहा है कुछ साल तक मैं $R withdraw करता रहूँगा. Making your last withdrawal at the end of year 9. आखिरी withdrawal होगी 90 साल पे. यानी
यहाँ भी पैसे निकालूंगा, यहाँ भी पैसे, यहाँ भी पैसे, यहाँ भी पैसे, यहाँ भी पैसे और यहाँ पर भी पैसे, ये भी हो गया। टू अचीव दी फॉलोइंग पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज ओवर टाइम, ये उसने आपको बनाई थी, आपकी आसानी के लिए। सो गुड। So now, how large must R be to leave you with exactly a zero balance after your final R withdrawal is made at the end of year 9? वो कह रहा है कि वो जो पैसे ये निकालेगा वो कितने होंगे ताकि आखिरी 90 साल पर 9 साल पर आपके पास पैसे जीरो हो जाए, पैसे जीरो हो जाए। यानी पैसे आपके पास से 1 लाख आपने जमा किए, 4 साल तक आपने कोई पैसे नहीं निकाले, 3 साल तक, और फिर चौथे साल आपने पहले पैसे निकाले, और फिर हर साल आप पैसे निकालते हो, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कितने पैसे निकाले, ठीक। और फिर वो ये कह रहा है कि 9th ईयर के आखिर में जब वो पैसे निकालता है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, लेकिन ये सारे पैसे इक्वल है। यानी ये तो एनविटी बन गई, ये एनविटी बन गई, लेकिन इस एनविटी का आर मुझे मालूम नहीं है, तो या तो इसका पीवीए होना चाहिए मेरे पास या एफवीए होना चाहिए, ठीक है। आय मेरे पास 5% है, और ये जो एनविटी है ये अगर एंड ऑफ ईयर से ऑर्डिनरी है, और स्टार्ट कहां से करूंगा अगर ये ऑर्डिनरी है तो 5 से 1 से 0 से 3 से था 3 0 और 3 0 से क्या हो रहा है? 1 से पहली पेमेंट 1 को मिलेगी। ऑर्डिनरी एनविटी क्या होती है? ईयर एंड पे पेमेंट। ऑर्डिनरी एनविटी में ईयर एंड पे पेमेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली पेमेंट होगी ना, जहां पर भी पहले उससे 1 साल पीछे आएंगे तो वहां से एनविटी स्टार्ट होगी। पहली पेमेंट कहां पे हुई है? 4 पे, तो 3 से स्टार्ट यहां से होगी। ये इसका ईयर 0 बन जाएगा, ये ईयर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये एनविटी कितने सालों की होगी? 6 इयर्स की, ये 6 साल की एनविटी होगी। लेकिन या तो मुझे ये वाली फिगर चाहिए या मुझे ये वाली फिगर चाहिए ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूं आर को, नहीं तो आर फाइंड आउट नहीं हो सकता, ठीक। ओके, ये मुझे पता है कि 1 लाख रुपए मैंने दिए थे आज के दिन, और 9th ईयर पे ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं 9th ईयर पे इसके पैसे बनते कितने हैं, ठीक है। तो इस 100,000 को फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100,000 फॉर 1 प्लस 5% रेज़ टू पावर ऑफ 9, ये सब का आ जाएगा जी। जो क्या आ जाएगा? जो विड्रॉल किया उसका क्या होगा? 4। सर इसको हमने ऐसे किया पहले 4 इयर्स पे सिंपल कंपोनेंट में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आर 11 लाख 11 लाख 2000 11 लाख 2656.43 11 नहीं समझ 1102,656 11 लाख 11,26,000 0 26,000 .43 0.43 11 लाख 2,000 ओके, सो दैट मींस मैंने 1 लाख रुपए जब दिए तो वो 9 इयर्स के बाद इतने बन गए, ठीक है, इतने बन गए। अब अगर मैं इसको एनविटी बना लेता हूं तो मेरे पास आ गई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी मेरे पास आ गई, सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इक्वल्स आर, आर इज नॉट नोन, आर को इस तरह लिखते हैं 1 प्लस 5% और एनविटी कितने सालों की है? 6 इयर्स की, Yes. फाइंड आर। ये करते हैं सर। पीस ऑफ केक मतलब क्या है? ये तो उस वाले से ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान जी। ओके, सो 1 प्लस ये क्या लिखा है यार? 1 प्लस 5% किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये जिना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी किसने निकालता है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्यूचर वैल्यू FVIFA 5% and 6. Okay, find out this factor 5% and 6. Go to the table. Table किसी के पास है? 5.076 Confirm? 5.076 R और future value of equity is how much? क्या गलत? ये गलत है। ये किसने फाइंड आउट की थी? Who calculated this figure? मैंने फाइंड किया 1 million 5 लाख 5,000
$1,55,000. 152 तो ये किसने फाइंड आउट करके दी थी इतनी बड़ी फिगर? 1 मिलियन तक ये ले गया था, ये 155,000 है तो बहुत फर्क है। मैंने एनवीटी जो एनवीडी क्यों की? Was not NVD. So this is the figure. क्रॉस चेक किया Okay, so 155,000, 132.82 equals R of 5 into 5.076. इसको उधर ले जाए, divide कर दें, you will get the value of R. G class, clear? Clear? 30,000. 30,056. Point 20. सही है? सही है क्लास? Any other question? नाउ सर No. Pause करें, take a 2 minutes break, and then start new chapter. 2 minutes break class. Securities. So now class, our next topic is valuation of long-term security. ठीक है? Valuation. Valuation क्या है? एलोकेट कर वैल्यू किसी चीज की Value determine. लेकिन value क्या वैल्यू? कौन सी वैल्यू? Future value. उसकी जो Intrinsic value. मार्केट वैल्यू Market value. जो प्रेजेंट वैल्यू Past value. Present value. मार्केट अभी जो उसकी वैल्यू है सर उसको अभी जो उसकी वैल्यू है। अच्छा देखिए वैल्यूएशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर उसमें से आप देखेंगे कि हमारे काम का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है कि हम कौन सी वैल्यूएशन निकालते हैं। सो वी नीड टू लुक एट डिफरेंट वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो डिफरेंट वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कौन कौन से। देन वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड वैल्यूएशन कि बॉन्ड को कैसे वैल्यू करते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या है आप सबको पता है? इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट। हम बॉन्ड की टाइप्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे, हम उनके फीचर्स भी आपको समझ आ जाएगा और उसको वैल्यू किससे करते हैं आपको ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। देन वी विल टॉक अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। देखिए ये डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड दिस इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये स्टॉक्स आ गए, इक्विटी आ गई। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट रेट्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, और यील्ड्स। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग ये पढ़ लेंगे सो वी विल गेट सम आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रिटर्न और रिस्क एंड रिटर्न। सही है? Got the idea? So this is what we will be doing in this chapter. Okay, first thing, liquidation value. Liquidation किसे कहते हैं? खत्म करने की जब हम किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट Cash में convert करते हैं, money. ठीक है? When you liquidate an asset, when you convert it into cash. So liquidation value is the amount of money which you will get if an asset, मतलब एक एसेट मेरे पास है गाड़ी, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ट्रक, हमारी बस है, आई एम साइंसेस। एक बस, इफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स, सारी बसें या सारी बसें हम बेचें, ठीक, लेकिन देखिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बेच रहे, हम सिर्फ ये एसेट बेच रहे हैं, इज सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर सेलिंग दैट एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। तो वो जिस कीमत पर बिकेगा उससे जो पैसे आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं, उस पैसे को जिस कीमत पे वो बिकता है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन। सर अगर आप कोई पर्सन मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है तो फिर जब वो बेचेंगे if a separately an entity then तो वो एंटिटी से अगर अलग करके उसको बेचेंगे, ठीक है, सो देन इट्स कॉल्ड एज लिक्विडेशन वैल्यू। किस कीमत पे वो बिक सकती है, ठीक है, किस कीमत पे वो बिक सकती है। हाँ तो ठीक है, लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक, गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके, गोइंग कंसर्न वैल्यू। नाउ रिमेंबर वी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। याद है? यस गैप याद है? गैपलेस वाला ने कहा था कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। इट विल नेवर एंड और गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि इट विल कंटिन्यू फॉरएवर continue forever, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। So going concern value would mean the amount which a firm could be sold, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही चल रही है, IMS is a going concern, ये चल रही है continuously, और हम कह रहे हैं ये चलती रहेगी कितने साल तक, और अगर अभी हम IM Sciences को बेच देंगे, ठीक है, so represents the amount a firm could be sold
फॉर एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग बिजनेस है। कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया बस अनचांसेस बंद हो गया और फिर मैं इसको बेचता हूं। सो दैट वुड नॉट बी अ गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू तब है जब एक ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोइंग कंसर्न, यानी वो चल रही है फॉरएवर। ये नहीं कि अगले 1 साल में खत्म हो जाएगी, 2 साल में खत्म हो जाएगी, मतलब वो चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है, इज अ गोइंग कंसर्न। हां, इज अ गोइंग कंसर्न और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बेचना चाहता हूं, तो उसकी जो पैसे मुझे मिलेंगे इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोइंग कंसर्न, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द गोइंग कंसर्न। गॉट इट? क्लियर? गोइंग कंसर्न को हम गुडविल वैल्यू कह सकते हैं। गुडविल वैल्यू नहीं, गुडविल तो वो होगी जो कि रेपुटेशन, हाँ, जो कि उसके एसेट को नहीं बेच रहा, उसका टैंजिबल एसेट नहीं, उसके अलावा जो पैसे मिल रहे हैं वो गुडविल, उसके अलावा जो पैसे। The government is selling the BIS, so हम कहेंगे कि going concern जितनी amount है वो। तो गोइंग कंसर्न में पहले तो उसको देखना पड़ेगा इस पीआईए से गोइंग कंसर्न और नॉट, ठीक है? इट इज कमिंग कंसर्न। ऐसे देखिए, गोइंग कंसर्न वो है जो सस्टेनेबल, इसका मतलब ये है कि कोई पीछे से उसको फंड नहीं दे रहा, वो जितने पैसे कमाता है खुद खर्च उससे फिर से गोइंग कंसर्न और नॉट। Liquidation में जो कैसे है? अगर गोइंग कंसर्न तो ये नहीं है ना कि मैं लॉस करता हूँ और फिर मैं घर से पैसे लाके बीच में डाल देता हूँ, या मैं अहमद से कहता हूँ यार अहमद थोड़ा कर्जा मुझे दे दो, तो फिर इससे तो मैं चलता रहूंगा, गोइंग कंसर्न होता रहूंगा, लेकिन कर्जा जो है वो दैट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, ठीक है? तो वो तो क्योंकि एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इस वजह से उसके साथ नहीं होगा। ओके, बुक वैल्यू जी, बुक वैल्यू क्या होती है? किसी भी एसेट की कॉस्ट अगर उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं हो तो माइनस करनी होती है, ठीक है? बुक वैल्यू जो कि बुक के अंदर, बुक कौन सी? बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स, सो दैट मींस इफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एसेट की जो कॉस्ट थी, ठीक है, माइनस उसकी जितनी अब तक डिप्रिसिएशन हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। सो द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, उसकी अकाउंटिंग वैल्यू, जिसका मतलब है एसेट्स कॉस्ट माइनस इट्स एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्लियर? यस क्लियर? लेकिन जब हम कहें बुक वैल्यू ऑफ एन फर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी बुक के मुताबिक उसकी वैल्यू देते हैं। तो जितने भी उसके सारे के सारे एसेट्स पॉजिटिव्स हैं और जितने भी उसके सारे के सारे लायबिलिटीज नेगेटिव्स हैं, उसको माइनस करके जो भी निकलता है, दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म। सो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन इस लायबिलिटीज में क्या क्या होगा? इसमें ओनर्स इक्विटी नहीं होगी, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक एज लिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट। ये उसकी बताएगी कि बुक वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या है? कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या डिफरेंस है? थोड़ा आगे जाके हम पढ़ के लेंगे क्या डिफरेंस है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, कॉमन स्टॉक मैं शेयर इशू करता हूं, आप लोग शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग मेरे कॉमन शेयर लो, फिर मुझे दोबारा कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं दोबारा शेयर्स इशू करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अब जिनको इशू कर रहा हूं, ठीक, उनका प्रेफरेंस होगा आप लोगों का, यानी ये प्रेफर्ड होंगे, इनका प्रेफरेंस है। किस चीज में प्रेफरेंस है? जब मैं डिविडेंड देने लगूंगा, इनको पहले दूंगा फिर आपको दूंगा। वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स नहीं दूंगा, बहुत सारे फीचर्स हैं, इनको वोटिंग राइट्स नहीं देता मुझसे। फिर मैं कहता हूं कि जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी तो पहले लिक्विडेशन में इनको पहले पैसे दूंगा फिर आपको दूंगा, ठीक है? तो प्रेफर्ड मतलब ये प्रेफर्ड, इनको प्रेफर करूंगा, ठीक, और नॉर्मली इनका जो डिविडेंड होगा वो नॉर्मली फिक्स होता है, नॉर्मली, ठीक है? आप लोगों का डिविडेंड तो ये है कि अगर मैं कमाऊंगा ज्यादा तो आपको, जब नहीं कमाता कहता हूं कहीं इन्वेस्ट करता हूं, आप लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन इनको फिक्स्ड हर साल, सही है? ये प्रेफर्ड। ओके, so got the idea of book value of a firm? yes sir. Okay, so let's move on. Now let's talk about market value. जो आपको market value जो है वो value है जो कि market demand and supply से, so represents the market price at which an asset trades. जो मार्केट में उसको बिक रही है बस वो उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो मार्केट में बिक रही है। आप बहुत कहें सर ये मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, ये यार मार्केट में इसकी ये कीमत है, मार्केट में लोग इसकी ये कीमत देते हैं, इस कीमत पे बिकती है, बस वो उसकी मार्केट है। प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू से या प्रेजेंट वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू क्यों? प्रेजेंट वैल्यू तो ये है कि अगर कोई पैसे मुझे मिल रहे हैं फ्यूचर में तो आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है, उसको प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम एसेट की बात करें, नहीं
present value of a building तो उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ building क्या प्रेजेंट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है। तो वो बुक वैल्यू भी बनेगा मार्केट नहीं, बुक वैल्यू बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू तो हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते ना एक बिल्डिंग के लिए, लेकिन चले अगर मैं आपकी बात मानूं कि जर्नी देयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो द प्रेजेंट वैल्यू क्या आज की दिन उसकी कीमत क्या है, सो इट विल बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू रादर देन बुक वैल्यू। बुक में हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकता है उसकी वैल्यू कम। जैसे कि आपने वो बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की फॉर एग्जांपल 6 साल पहले, उसकी कॉस्ट आपको थी 50 लाख 1 मिलियन, लाइफ 10 इयर्स है, 5-6 साल में आपने उसको डिप्रिशिएट किया होगा 60%। 60% इसको कम करने कितनी रहेगी? 4 लाख 4 लाख, ये बुक वैल्यू। लेकिन आज के दिन में अगर आप इस बिल्डिंग की वैल्यू देखेंगे मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी 25-30 लेकिन सर अगर हमें मार्केट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मार्केट वैल्यू अगर हमें ना पता हो तो हमारे लिए तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख है। मार्केट वैल्यू मुझे ना पता हो तो मेरे पास बुक वैल्यू है, बुक लेकिन वैल्यू बुक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती मार्केट वैल्यू को, बुक वैल्यू उसकी करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, ठीक है, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू है, जो कि बेस कर रही थी इस बात पर कि मैंने खरीदी कितने की थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो भी आपकी मर्जी से था, आपने कहा बस 10 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगी, बिल्डिंग्स तो 10 साल से ज्यादा चलती हैं, और विद कीपिंग इन माइंड द करंट इन्फ्लेशन तो उसकी तो वैल्यू और एप्रिशिएट होगी, सही तो फिर फर्क ओके। मार्केट वैल्यू क्लियर? दिस इज द वैल्यू वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन आवर कोर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये वैल्यू हमारे काम, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, जो हम वैल्यूएशन कह रहे हैं ना वो हम ये काम करें। ये वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कहां पे पढ़ा था? इकोनॉमिक्स में। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी? ऐसे वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जितनी क्वांटिटी थी उसका सेल उस कॉइन के अंदर जितनी चीजें थी, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एक नोट है, अभी आपको दिखाऊं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपसे कहूं तो आप कहेंगे तो पीस ऑफ पेपर है, इतना सा पीस ऑफ पेपर है, इसकी क्या वैल्यू है? 5 रुपए का वैल्यू वैल्यू, वैल्यू होगी उसके अंदर। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू इट शुड हैव, इट ought to have, but you need to keep in mind all the factors which decides the valuation. सर इसमें फैक्टर जैसे गोल्ड और ऑयल हो गया सर, जो मनी के पीछे होता था सर, इंट्रिंसिक वैल्यू सर, जैसे गोल्ड कॉइंस हो गए, सिल्वर कॉइंस हो गए सर। देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू कर रहे हैं सिक्योरिटीज को ना, सर यहाँ पे हम लोग उसी तरह का है सर ये कॉन्सेप्ट भी। हाँ ये कॉन्सेप्ट उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे जो था वो फिजिकल एसेट्स थे, यस सर। ठीक है। ये जो है ये भी फिजिकल एसेट्स हैं, लेकिन ये सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यस सर। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे डेट के, इक्विटी के, और देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वहाँ पे तो ये था कि कोई चीज थी ना, कोई गोल्ड कॉइन था या कोई एसेट था, फिजिकल एसेट था, जिसको आप देखते थे कि इसके अंदर क्या कुछ है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द वैल्यूएशन। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर ये एसेट मुझे मिलेगा 5 साल बाद, तो आज के दिन इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे यार 5 साल बाद मिलेगा तो इसको डिस्काउंट करो, इंटरेस्ट रेट इसमें रखो, डिस्काउंटिंग रेट रखो, इसको डिस्काउंट करो, तो ये चीज है वैल्यू। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वाला वो कांसेप्ट होता है या नीचे है नहीं, वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ पे एसेट बदल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक, गॉट द आइडिया ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? यस सही है, जाएंगे? यस ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड वैल्यूएशन। सर इंट्रिंसिक वैल्यू की समझ नहीं है। ये कर लेंगे सर। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू बात है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? हमने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि किसी चीज की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, अगर वो सारे फैक्टर्स जो उसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं उसके मुताबिक उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जिस तरह मोबाइल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप कहते हैं सर ये मार्केट को लेके जाएं तो 5000 का है, मैं कहता हूँ क्यों यार 5000 का क्यों है, इसके अंदर इतनी रैम है, अगर रैम की वैल्यू लगाएं तो रैम की वैल्यू इतनी आती है, इसके अंदर इतना इसका प्रोसेसर LCD है, let's say,
उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये इतना हो गया, इसके अंदर इतनी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है उसका, ये मेमोरी इतनी है, तो इस सब चीज़ों के मुताबिक इसकी वैल्यू इतनी बनती है। अब ये वैल्यू जो मैंने बताई है कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए इंट्रिंसिक, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर मार्केट में तो ये इतने का बिकता है, वो मार्केट वैल्यू, ठीक है। और जो हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की वो हमने इस बात पे कैलकुलेट की कि इस एसेट की वैल्यूएशन में क्या चीजें दिमाग में रखी जाती है, तो वो इसकी अगर गाड़ी है तो आप कहते हैं कि उसका इंजन कितना है, अच्छा है कि नहीं, कमजोर है नहीं, उसकी बॉडी कैसी है, जंग तो नहीं लगा हुआ, पेंट कैसा है, अच्छा उसकी माइलेज कितनी करती है, मॉडल कौन सा है, ब्ला ब्ला। लेकिन मार्केट में अगर कोई चीज बिक रही है ज्यादा या कम, तो ये तो हम बात ही नहीं कर रहे कि मार्केट वैल्यू कितनी है, हम तो ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि इसकी वैल्यूएशन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, तो ये देखना है। अब हम कहेंगे कि शेयर बेशक मार्केट में जितने का भी बिक रहा है, इसको मत देखें, ये देखें कि आपके हिसाब से शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये शेयर डिविडेंड देता है, कितना डिविडेंड देता है, कब कब डिविडेंड देता है, ठीक, उसको डिस्काउंट करके देखें कि आज उसकी वैल्यू कितनी बनती है। इन्वेस्टर नहीं, जो वैल्यूअर होता है, जो वैल्यू करता है चीज को, तो वो ये चीज देख रहा होगा। या इन्वेस्टर हाँ, इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करता है और फिर चेक करता है कि मार्केट वैल्यू और इसमें कोई गैप है, अगर है तो क्या मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। गॉट द आइडिया? Yes. Got the idea? Okay. So now we'll talk about bonds. There are some terms in bonds. We'll talk about different types of bonds. We'll value the bonds and we'll talk about semi-annual compound. This is what we'll talk about bonds. ठीक है? Bond में सारी बातें करेंगे। मैं जल्दी से आपको बेसिक आइडिया देता हूँ बॉन्ड है क्या, ताकि थोड़ा बहुत कवरेज हो जाए, तो हम थोड़ा सा पीछे रह गए। बॉन्ड क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, एक साल के अंदर अंदर। ये लॉन्ग टर्म है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के भी बॉन्ड्स होते हैं, 30 साल के भी बॉन्ड्स होते हैं। सो दीज आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सो बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। नाउ हु इश्यूज दैट? Government can issue that. When a government issues that, it is called as treasury bond या गवर्नमेंट का बॉन्ड। और जब कॉर्पोरेशन इशू करे इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट। ये बात भी क्लियर हो गई? बॉन्ड्स नॉर्मली हैव अ मैच्योरिटी, यानी एक टाइम आएगा जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो द मैच्योरिटी वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि ये कितने का है। और हम आगे पढ़ेंगे कि बॉन्ड, यूएस बॉन्ड जो है वो 1000 रुपए, ठीक है। सो द मैच्योरिटी वैल्यू और द फेस वैल्यू क्या चीज है कि ये इसके ऊपर लिखा होता है, और नॉर्मली जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाता है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को यू हैंड इन दैट इंस्ट्रूमेंट, सो द ऑर्गेनाइजेशन विल पे यू बैक दैट फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। और साथ में इंटरेस्ट भी देंगे सर? इंटरेस्ट तो देंगे, वो तो अलग, वो एक अलग स्टोरी है, उस पर बात करते हैं। इंटरेस्ट होगा अभी आगे अगले स्लाइड में इंटरेस्ट की बात होगी, लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं उस वैल्यू की। सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। ये बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है, नॉर्मली 1000 रुपए है यूएस के अंदर, ठीक है। और ये वो पैसे हैं जो आपको वापस मिलेंगे जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कूपन रेट। सर एक कंपनी के लिए सर बॉन्ड इशू करना बेहतर है सर, या किसी बैंक से लोन लेना बेहतर है सर? ये वो कंपनी खुद एनालाइज करेगी क्या चीज उसको अच्छा मिल रहा है, क्या उसको बैंक से लोन सस्ता मिल रहा है, या आपको जब वो बॉन्ड इशू करते तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, दे विल डिसाइड, ठीक। क्या मिक्स कर दें, क्या करें, हमने इशू में पढ़ा था ना कि किस तरीके से फाइनेंसिंग करें। ओके, जो आप बात कर रहे हैं वो है बॉन्ड का कूपन रेट। अब हर बॉन्ड के ऊपर जिस तरह इसकी वैल्यू लिखी है, इसके साथ इसका कूपन भी लिखा होता है। कूपन 5% इंटरेस्ट देगा, ठीक है। कब देगा? साल में एक बार देगा, साल में 2 बार देगा। अगर साल में 2 बार देगा सेमी एनुअल, साल में एक बार देगा एनुअल। सो द बॉन्ड्स कूपन रेट इज अ स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट होता है जो लिखा होता है, और ये वो कंपनी आपको पे करती रहेगी। द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड्स फेस वैल्यू, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 1000 है, तो उसका इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया? 1050।
55 कितना हो गया? 10 अमाउंट हाँ 50 होगा। हाँ तो 50 आते हैं 1000 50 होगा। 50 हो गया ना, 50 हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 50 रुपए आपको देगा हर साल, ठीक। फिर आगे एक और बात पढ़ेंगे कि इसकी कोई ना कोई लाइफ होगी, मेच्योरिटी, उस टाइम तक देता रहेगा। अगर 5 साल है, 5 साल तक देता रहेगा हर साल 50 50 50 50, 5वें साल 50 रुपए देगा, और फिर 5वें साल आप इसको ये बॉन्ड वापस करेंगे और वो आपको आपके 1000 रुपए वापस। Got you? Okay. So this is called as coupon rate. Discount rate बढ़ा दूं या नहीं? बस. Okay. So we are stopping here. This is where we will start from, inshallah, next class. Okay. Thank you.